देन इज योर एजुकेशन सेक्शन. एजुकेशन सेक्शन, लाइक आई सेड, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस नीचे आएगा, एजुकेशन ऊपर जाएगा. अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो एजुकेशन कहीं नीचे रह जाता है, वर्क एक्सपीरियंस ऊपर आ जाता है, तो उसको हम ऊपर रखेंगे. इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम अपने स्कूल का नाम, अपनी डिग्री, जीपीए बता सकते हैं. अगर आपको कोई अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं, सर्टिफिकेशन मिले हैं, सब्जेक्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आप बताना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं. ये मैंने फ्रेशर्स को दिमाग में रख के भी बनाया है कि कई बार फ्रेशर्स को ये नॉलेज नहीं होती कि सिर्फ बीकॉम किया है, अब क्या बताएं उसके अंदर. अब आता है आपका स्किल्स सेक्शन रिज्यूमे पे, which is very crucial because this has to be again tailor made for the company that you are applying for. जिस कंपनी में जो स्किल चाहिए आप जज करें, if you have that skill and mention it. For example, few companies can ask for a hard skill. For example, in your case, they can ask whether you know particular type of software or what is it that you know. That could be a few hard skills. I have taken example of digital marketing where these are a couple of hard skills. Similarly, every job description will have some soft skills. They will say, we need teamwork people. We need people who are decision takers. We need people who are good at communication. Right? You will find these words in job description. और अगर ये वर्ड आपके रिज्यूमे पर नहीं है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे. मैं रिपीट कर रही हूं, अगर आपके स्किल सेट के वर्ड आपके रिज्यूमे पे नहीं होंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, so please make sure that you match your skill set with the job description. Then is your extracurricular activities. Again, this is for people who are freshers. So in this, what will you do? You will talk about that you can put the title of the section, that it is extracurricular activities. Then you will write down the name of the organization, your role in that organization, the time period, and what was it that you did. The last part, which is very important and many people confuse with this, is your hobbies. Okay, कि हम hobbies को क्या mention करें, कितना mention करें, क्या लिखें. So a hobby is something which should actually talk about you. Okay, that is something that you should write, and it should be one of the icebreakers. It can help you. You should be specific and honest in it. How will you do it? Because this is something which can help you stand out, make it attractive, make it memorable. So this was all about resume. Now I'm going to touch upon ATS, which we have touched in the last session also while we talked about LinkedIn. That is the applicant tracking system. ये है क्या? It is basically a human resource software which allows employers to organize large number of applicant resume. एक नौकरी ENY की निकलती है, उसके लिए शायद 10,000 लोग अप्लाई करते हैं. A company cannot check for 10,000 resumes, so they use applicant tracking system. कैसे यूज करते हैं वो? उसको जो जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने एड में निकाला है उसमें उन्होंने कीवर्ड्स दिए हैं. वो ये समझना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर वो स्किल सेट है, डू यू हैव दोस सॉफ्ट स्किल्स, दोस हार्ड स्किल्स. So they put it in form of keywords and they tell the ATS that now if this resume has this keyword, these are the marks you should give this resume. So they optimize their system to analyze your resumes based on the keyword optimization. How? ATS will analyze the content of your resume and it will find the keywords. Have you written GST? Have you written ITR? Have you written about few other things that the company wants you to do at that position? अगर उसको मिलता जाएगा आपको उसके +1 मिलते जाएंगे या +10 या +20 जो भी कंपनी ने वेटेज रखा है. और कई बार एटीएस ऑटोमेटिकली बाकी रिज्यूमे को हटा देता है. एचआर को देखने का मौका नहीं मिलता है. सिर्फ वो रिज्यूमे जो एटीएस आगे लेके आता है 10,000 में से चाहे 20 चाहे 200, सिर्फ वो रिज्यूमे नेक्स्ट लेवल पर एचआर के सामने आते हैं. एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे इज अ रिज्यूमे व्हिच इज टू बी रेड बाय अ कंप्यूटर. तो अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी 1-0. उसको सिर्फ इतना समझ आता है, उसको ग्राफ चार्ट कुछ समझ नहीं आते हैं, उसको कंटेंट समझ आता है. तो कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग, स्पेशल सिंबल्स कुछ नहीं डालना, कोई जेपीजी फाइल्स नहीं, कोई पीएनजी फाइल्स नहीं. क्या डालना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए, कॉपी और पेस्ट. इसीलिए वर्ड की फाइल या टेक्स्ट फाइल एटीएस फ्रेंडली होती है. कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, मैं रिपीट कर रही हूँ, इस वर्ड से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए एक अच्छे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए. एंड अप्लाई फॉर अ जॉब दैट यू आर एलिजिबल फॉर. अगर उन्होंने लिखा है ना 3+ years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और आपका रिज्यूमे 1+ year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कह रहा है, you will not get shortlisted if they are using ATS because
It is a computer. Computer will not see other traits. It will see 1, 3. Okay, rejected. That's it. So see the right job, apply for that right job. Don't apply to 100 jobs. Apply for the job that you are the best fit, so that you get the right result. Okay. So I think this is what I wanted to touch for ATS and ATS related resume guidelines. So over to you, Ghanshyam sir. This was what I had prepared in terms of the content which I thought that they must understand. And in all of this, the most important thing is the keywords for every stream. Over to you, please. मैं मेरा 2-3 सवाल मेरा खुद का भी था, लाइक ये एटीएस जो होता है वो आपका बिग फोर्स में नॉर्मली अप्लाई होता है, आपको लगता है कि ये इंडस्ट्रीज में ज्यादा करके एटीएस सॉफ्टवेयर यूज होता है? सर सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो आपसे कहीं भी अगर ऑनलाइन रिज्यूमे लगवाया जा रहा है, इफ यू आर अपलोडिंग अ रिज्यूमे एनीवेयर, इट इज गोइंग इनटू एटीएस. इसको तो आप लेके चले. हाथ से पकड़ा के आ रहे हैं ना, बस वहां एचआर शायद देख लेगा. अदरवाइज if they are asking you to upload on the website, if they are asking you to put it on the portal, even on LinkedIn, if you are uploading, it's going into system. There is no other way. 10,000 रिज्यूमेस का प्रिंट लेके कोई फिल्ट्रेशन नहीं करेगा. That's the point. मैं एक रेज्यूमे का सैंपल आपको एक बार दिखा रहा हूँ और आप इसमें सब बताइएगा, सो मेरे को भी थोड़ा आइडिया पड़े कि क्या गड़बड़ हो रहा है नॉर्मली कैंडिडेट्स का. मैं फॉर एग्जांपल ये अब इतना ये वाला एक रेज्यूमे है फॉर एग्जांपल, तो ये रेज्यूमे क्या चेंजेस हो सकता है आपके हिसाब से? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? और मैं हाँ जी, हाँ जी. अब सर इस रिज्यूमे के अंदर ये जो आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, कंप्यूटर को ये सब समझ नहीं आता. ये नहीं होने चाहिए. The maximum these extra tables etc. at times the easiest way to check whether your resume is good or not is copy the word file, और कंप्यूटर में जो txt नहीं होता, टेक्स्ट एडिटर होता है ना, उस पे पेस्ट करके देख लीजिए. अगर आपका फाइल उस पे पेस्ट करने पे नहीं हिला, जो चीज जहां थी वहीं की वहीं रही, इसका मतलब कंप्यूटर इसको पढ़ लेगा. अगर वो हिल रही है, इसका मतलब फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम है. मैं सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि कंटेंट तो इस पे डिपेंड करता है कि किस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए ये रिज्यूमे बनाया है, क्योंकि वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जैसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहा है? लाइक आप बोले फॉर्मेट टेबल्स. इसको कंट्रोल ए करोगे, आप कॉपी करो इस पूरे रिज्यूमे को, कंट्रोल ए करना. कंट्रोल ए तो होता ही नहीं है ये. एक मिनट, कंट्रोल ए नहीं होता पीडीएफ में ना वर्ड फाइल. अच्छा पीडीएफ में कोई वर्ड फाइल नहीं है आपके पास? कोई वर्ड फाइल एक बार कोई मेरे को वर्ड फाइल भेजने का, तो व्हाट्सएप में भेजना, तो कोई अपना वर्ड फाइल मैं देखता हूँ. सर तब तक आप एक बार वो खोल लीजिए अपना ना, सर्च विंडो में जाके टीएक्सटी एडिटर, टेक्स्ट एडिटर खोल लीजिए. ये एक खोल रहा हूँ मैं वर्ड फाइल. एक वर्ड फाइल है मेरे पास. ठीक है ठीक. एक सेकंड, आपको दिखेगा तो हमको बताइएगा. हाँ ये रहा, ये वर्ड फाइल है. हाँ जी अभी नहीं दिख रही सर. हाँ अब दिखिए. हाँ जी हाँ जी. बस इसको आप कॉपी कर लीजिए. एक सेकंड, कॉपी कैसे हो रहा है? कॉपी कर लिया इसको. हाँ जी. अब आप इसको उसमें ले जाइए, टेक्स्ट एडिटर में, सर्च में जाके टाइप कीजिए टेक्स्ट. गूगल में क्या आता है ना जो हमारा? हाँ नोटपैड नहीं होता, नोटपैड होता है ना, नोटपैड. ओके हाँ नोटपैड खोल लीजिए बस, और वो स्क्रीन हमारे साथ शेयर कर लीजिए एक बार, और उसमें इसको बस पेस्ट कर दीजिए. बस अब आपको अगर ये सारा का सारा रिज्यूमे आप अगर एक नोटपैड में पढ़ पा रहे हैं ना, इसका मतलब ये रिज्यूमे एक कंप्यूटर पढ़ लेगा. बस इसमें अगर कोई भी चीज इटैलिक्स नहीं हो गई, एट नहीं बन गई, इसका मतलब बिल्कुल ठीक फॉर्मेट है, कंप्यूटर को समझ आएगा. ये सबसे आसान तरीका है चेक करने का कि क्या मेरा रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है या नहीं. बस उसको वर्ड में चेक करना है, पढ़ने लायक है कि नहीं है, बस वही ना. हाँ मतलब ये चेक हो जाएगा कि विल द कंप्यूटर बी एबल टू ट्रांसक्रिप्ट. तो उसको 1-0 बिना डाले समझ आ रहा है, उसको नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, उसको अक्षर सारे समझ आ रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लियर.
But the moment it is not right, the formatting is different, it will change everything and it will not be in a readable हाँ, format. यही in the कारण है। text file हाँ, also. हाँ, और बोलता है कि फोटो नहीं होना चाहिए, आपका टेबल्स कम होना चाहिए, टेबल, फोटो ये सब बिल्कुल इमेज वगैरह बिल्कुल, कम ग्राफ रखने के कुछ लिए। नहीं समझ आता है सर। अगर आप अभी टेबल्स और ग्राफ कॉपी करोगे टेक्स्ट एडिटर में, वो उठाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको और नहीं शॉर्ट समझ लिस्ट भी आता नहीं है होता वो। है। ऊपर से ये टेम्पलेट भी ये लेने मना लॉजिक है। करता है आपका ना, टेम्पलेट वगैरह लेने मना करता है, कहीं से भी टेम्पलेट नहीं कॉपी करने के लिए, कोई भी टाइप का कैनवा या कहीं पर से भी। एटीएस फ्रेंडली टेम्पलेट्स जो होते हैं सर, उनमें ज्यादातर सिर्फ एक आध लाइन होती है, हम्म, लाइंस इज ओके। द मोमेंट हम्म। यू पुट मल्टीपल ब्लॉक्स एंड पैराग्राफ, कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड, उसको वो जीरो करके बाहर कर एक दो देगा सैंपल आपका आप सारा। हमको भेज दीजिएगा ना, हम एक बार देख लेंगे। हाँ मैं बिल्कुल सर, इसके सैंपल्स में अभी एक्चुअली हमारा टाइम खत्म होने वाला है, हाँ, वरना हाँ, एक मैं समझ वेबसाइट गया। है, उसका नाम है जॉब स्कैन। आप सब एक बार गूगल पे टाइप करिएगा जॉब जॉब के। स्कैन। उस हम्म, पे आप आके जाके सर्च करेंगे ना, तो उसमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करिए, अपना रिज्यूमे कॉपी करिए, वो हम्म, आपको ये बताएगा कि आपका ये रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन से कितना बड़ी मैच करता है, शॉर्टलिस्ट सही। हो गए या नहीं, वो पहले पता चल जाएगा।